Hello everyone, welcome to the new session. ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସେସନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆଜିଠୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରୀ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ। ଓକେ, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥଟ୍ କ'ଣ? ହାର ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥଟ୍ କ'ଣ କି ହାର ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସଫଳତା ସମ୍ଭବତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଛି। ତାର ମାନେ କ'ଣ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମଟା କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ କରୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର କରୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର କରୁ, ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଠିକ୍ ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା କି ହାର ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ସଫଳତା ସମ୍ଭବତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଛି। ଓକେ, ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1 ହେଉଛି ତୁମ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଇ ଲେକ୍ଚର୍ସରେ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବ୍ରିଫଲି କି ଆମେ ମିନିଂ ଜାଣିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମିନିଂ କାଣା, ତାପରେ ତା ଡେଫିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଡେଫିନେସନ୍, ତା ସହିତ ତା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଟାଇପ୍ସ କାଣା ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାର ମେରିଟ୍ କାଣା, ଡେମୋକ୍ରେସିର ମେରିଟ୍, ଡିମେରିଟ୍ ଏଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଡେରି ନ କରିକି ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ? ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ସେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଡେମୋସ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରାଟସ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛ, ଗୋଟେ ହେଲା ଡେମୋସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରାଟସ୍। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଓକେ, ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣ। ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ଷମତା। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷମତା। କ'ଣ? ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କହିବା? ଗଣ ଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ଗଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା, ତ ଡେମୋକ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ କ୍ଷମତା ବା ଗଣ ଶାସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡେମୋକ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟସ୍। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଗଣ କ୍ଷମତା ବା ଗଣ ଶାସନ ବୋଲି ବାହାରିବ। ଡେମୋକ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣ କ୍ଷମତା ବା ଗଣ ଶାସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ, କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ବା ଶାସନ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ପଚାରିବା, ଡେମୋକ୍ରାଟସ୍ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣ ଶାସନ ବା ଗଣ କ୍ଷମତା। ଓକେ, ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁ ଶାସନଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡେଫିନେସନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଡେଫିନେସନ୍। ଶାସନର ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତାର ସଂଜ୍ଞା କେଉଁମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ?
लॉर्ड ब्राइस तांकर को संज्ञा देते ओके सेटा हम देखा कि जो सरकार रे शासन क्षमता जो सरकार रे शासन क्षमता कौनसी निर्दिष्ट श्रेणीर लोकंक हाथ रे न रही समग्र गोष्ठीर सदस्यंक हाथ रे न्यस्त थाए ताहाकू गणतंत्र कहुछि। लॉर्ड ब्राइस कौन कहला कि जो सरकार रे जेकोसी भी सरकार हो ना बीजेपी हो ना कांग्रेस हो जेकोसी सरकार हो जेकोसी सरकार रे यदि शासन क्षमताटा कौन पर्टिकुलर जड़े व्यक्ति हाथ रे न रहीकरी समग्र सदस्यंक हाथ रे न्यस्त थाए ताहले आमे ताके कहबा गणतंत्र। एक कथा किए कहले लॉर्ड ब्राइस कहले प्ले ए डेफिनेशन टाकू बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्ले बुझ पारलो डेफिनेशन में रखो। तापर नेक्स्ट डेफिनेशन के देथिले सिली देथिले प्रोफेसर सिली देथिले ओके सिली कौन कहिथिले कि सिली कहिथिला कि गणतंत्र होची एपरि एक शासन सिली कहले कौन ना गणतंत्र होचे एभली एक शासन व्यवस्था गणतंत्र होचे एभली एक शासन व्यवस्था जो थिरे व्यक्तिर समस्त व्यक्तिर भागीदार थाए कहला सिली कहला कि गणतंत्र होचे एभली एक व्यवस्था जो थिरे प्रत्येक व्यक्तिर अंश बा भागीदार थाए ओके जो थिरे प्रत्येक व्यक्तिर अंश बा भागीदार थाए बा पार्टिसिपेट करथांती प्रत्येक जनसाधारण से भली सरकार को गणतंत्र बोली कहुछि। एटा कहले कि प्रोफेसर सिली कहते ओके बोले। तापरे अब्राहम लिंकन कौन कहते अब्राहम लिंकन किए जड़े पूर्वतन अमेरिकार राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन बुझीगला जड़े अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन से अब्राहम लिंकन कहते कि गणतंत्र होछि गणंकर कहार गणतंत्र होछि गणंकर गण मान होछि कि जनसाधारण तो जनसाधारणंकर आ जनसाधारणक द्वारा आ जनसाधारणक पई उद्दिष्ट शासन बुझीगला गणतंत्र होछि गणंकर गणंक द्वारा आ गणंक पई उद्दिष्ट शासन ए जाय रे गणर अर्थ कोन गणर अर्थ होछि लोक माने बा जनसाधारण तेणु जदि मु कहबी जड़े तेणु एमती भी कहि परिबी कि गणतंत्र होछि लोकंकर लोकंक द्वारा और लोकंक पई उद्दिष्ट शासन ताकू कहा जाए गणतंत्र। एक कथा के कहिथिले अब्राहम लिंकन कहिथिले बुझिला कि बुझिला कार डाउट नहीं ओके। नेक्स्ट दिबा गणतंत्र रो प्रकार भेद ता टाइप्स ऑफ गणतंत्र ओके देखो बिले तुमको दिया छै गणतंत्र हमर दुई प्रकार रहला गणतंत्र दुई प्रकार हला गोटे हला प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे परोक्ष गणतंत्र केते प्रकार हला गणतंत्र को दुई भाग रे विभक्त करछे गोटे हला प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे जे परोक्ष गणतंत्र ओके। आ प्रत्यक्ष गणतंत्र को फिर आमे तीन भाग विभक्त कला कोन कोन गोटे हला गणभोट गणोद्योग आ गोटे हला प्रत्याहार बुझिला प्रत्याहार प्रत्यक्ष गणतंत्र को हम फिर तीन भाग विभक्त करछे गणभोट गणोद्योग और प्रत्याहार बुझिला पे गणतंत्र दुई प्रकार है प्रत्यक्ष गणतंत्र और टे परोक्ष गणतंत्र फिर प्रत्यक्ष गणतंत्र आम तीन भाग विभक्त कले गणभोट गणोद्योग और प्रत्याहार ओके। तेरे क्वेश्चन आसे कि प्रत्यक्ष गणतंत्र माने कौन और परोक्ष गणतंत्र माने कौन तो मान मन गोटे क्वेश्चन आसवा कि सर प्रत्यक्ष गणतंत्र माने कौन और परोक्ष गणतंत्र माने कौन देख बोले तुम वर्ड को टिके भल से जदि वर्ड मीनिंग को बुझी पार प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रत्यक्ष माने कौन प्रत्यक्ष अर्थ होची डायरेक्ट बा सीधा सलख कौन डायरेक्ट बा सीधा सलख डायरेक्ट बा सीधा सलख माने होची कि प्रत्यक्ष गणतंत्र होची एभली एक गणतंत्र जो ठारे डायरेक्ट लोक मानकर शासन चली था माने डायरेक्ट लोक माने शासन करि थांती केमती प्रत्यक्ष गणतंत्र होची एभली एक शासन जो थिरे राष्ट्र नागरिक माने प्रत्यक्ष भावे शासन कार्य परिचालन करते जो थिरे
प्रत्यक्ष गणतंत्र रे राष्ट्रर नागरिक माने कौन करते प्रत्यक्ष भाव डायरेक्ट बा सीधा सलक जहाँ भी कही पार तुम सीधा सलक शासन कार्य परिचालना करि ओके ताकू कह जाए प्रत्यक्ष गणतंत्र ओके आ प्रत्यक्ष गणतंत्र प्राचीन ग्रीस रे देखा मिलता किंतु वर्तमान समय जदि मुझे प्रश्न पचारे जदि मुझे प्रश्न पचरा जाए कि सर वर्तमान समय रे कौ जगार प्रत्यक्ष गणतंत्र देखा मिली तो आंसर कौन हम कौन आंसर वर्तमान समय रे स्विट्जरलैंड रे देखा मिले मन रख पिले वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि वर्तमान स्विट्जरलैंड रे केवल स्विट्जरलैंड रे देखा मिले प्रत्यक्ष गणतंत्र ओके तापर आसला प्रत्यक्ष गणतंत्र बोले परोक्ष गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र बा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोली कहा जाए कि जो शासन रे साधारण जनसाधारण प्रत्यक्ष भावे अंशग्रहण न करी आम प्रत्यक्ष गणतंत्र आम देखलु कि लोक मैंने सीधा सलख अंशग्रहण कर जो शासन रे जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण न करी जो शासन रे लोक माने सीधा सलख बा प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण न करी सेमानंक प्रतिनिधि हाथ में शासन दायित्व न्यस्त करथांती ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए ताकू कौ गणतंत्र कहुए प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए फॉर एग्जांपल भारत रे कौ प्रकार गणतंत्र देखा मिलते आम भारत रे प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन देखा मिलता है बा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा मिलता है केमती यार एग्जांपल दूसरी तुमको भल से बुझे कि प्रत्यक्ष गणतंत्र मान हूँ देख जे आमे माने कौन करें जो मानकर एजटा 18 वर्ष रु एभव से माने कौन करती भोट दे था भोट दियंती आ भोट देकी से माने निजर रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधित्व बाची थांती आमे कौन बाची था एमएलए माने बाची था बा रिप्रेजेंटेटिव कह जाए इमान एमएलए मान कौन कह जाए रिप्रेजेंटेटिव बा प्रतिनिधित्व बोली कही था जदि कौन सी आमको कौन सी दरकार है जदि कौन सी आईन प्रस्तुत करवा जदि हवा किंबा कौन सी आम असुविधा है आम सीधा सलख एमएलए मान को आम कहवा एमएलए माने जाइकी से माने तांकर कन्स्टिट्युएंसी रे कहबे प्रॉब्लम कहबे आउ तार समाधान करें तो आमे आमर रिप्रेजेंटेटिव बा आमर प्रतिनिधित्व को आम बाचुछु ओके आमे भोट देकी आमे प्रतिनिधित्व को बाचुछु से प्रतिनिधित्व माने जाइकी से माने आम प्रॉब्लम को से माने कहबे आउ तार समाधान करिथांती एथिरे आमे सीधा सलख शासन नहीं करबा किंतु आमर बाचिथिबा प्रतिनिधित्व माने जाइकी सेठारे शासन कार्यटा करजंती ओके सेटा हला परोक्ष गणतंत्र बुझिपारल एबे परोक्ष प्रत्यक्ष गणतंत्र को आम 3 भाग में विभक्त करछे जोटा गणभोट हला गणोद्योग हला और गोटे हला प्रत्याहार एबे क्वेश्चन तो मान को मन आसथिबा कि गणभोट माने कौन गणभोट माने कौन आम प्रत्यक्ष गणतंत्र जाननु परोक्ष गणतंत्र जाननु जोठारे सीधा सलख गोटे जगार लोक माने भोट दउथिला बेले शासन कार्य करुथिला बेले आ गोटे जगार आम इनडायरेक्टली इनवॉल्व होछि तो गणभोट माने कौन गणभोट कहले आम बुझिबा कि गणभोट होछि प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे अंश अटे कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे अंश जो थे कौन आईन कार्यकारी हेबा पूर्वर जो थे कि कौन गोटे आईनटा जो कार्यकारी हेबा ता पूर्वर कौन करा जाए ना लोक मानकर जनसाधारणकर मतटा लोड़ा जाए माने जनसाधारणकर मत भोट माध्यम जना जाए माने से कार्य से माने तांकर मत कौन ओके से माने से जिनिसटा को जो कार्यटा जो कौन से आईनटा करा जिबा सेति से माने ठीक कहउछन जो थे कौन से आईन कार्यकारी हेबा पूर्व जनसाधारण पाखे उपस्थापित करा जाए एवं जनसाधारण मत लोड़ा जाए तांकर मत कौन सेटा लोड़ा जाए ताकू कौन कह जाए गण भोट बोली कहुए ओके ए जगह आम लोक मानकर मतटा आम जाना चाहूँ कि से जो आम आईनटा तैयारी करछि सेति प्रति लोक मानकर रेस्पॉन्सटा काना होछि लोक माने काना कहूछ से मैं ठीक बोली भावुछ ना भूल बोली भावुछ जदि से माने जदि भूल कह भावे ताले सेटा कार्यकारी नहीं पारे आईन रे परिणत नहीं है ओके
तापर आसला गणोद्योग। गणोद्योग माने कौन जितेबले लोक मैंने कौन आईन प्रणयन आवश्यकता करती जितेबले जमीक लोक मान जदि लगिला कि आम मान गोटे एमती गोटे आईन तैयारी करवार अच्छी ओके तो लोक मान जितेबले लोक मैंने जदि भावे कौन आईन प्रणयन कर आवश्यकता से कौन करेंगे यही गण उद्योग को पंथा को अनुसरण करेंगे कि कौन आईन प्रणयन करने पूर्व से चिठा लिखिबे व्यवस्थापिक सभा को आउ से तार प्रणयन करा हूँ गण उद्योग ओके। तापर आसला प्रत्याहार। प्रत्याहार माने कौन कि कौनसी निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कहली कि कौनसी जदि निर्वाचित होता जड़े प्रतिनिधि तार कार्य जदि संतोष न मनकर मु जड़े लोक निर्वाचित कर वोट माध्यम जड़े लोक निर्वाचित करदे जन सरपंच हो कि एमएलए हो कि जो भाव भी आम लोक मान निर्वाचित कलु किंतु से जदि आम मान भल पाई जदि काम न करे से जदि लोक मान हित पाई काम न करे ताले आम कौन कर तार पदवी आम हटई दे था ओके तार पदवी आम कौन कर हटई दे था तो ताकू कौन कहुए प्रत्याहार बोली कहुए ताकू कहुए प्रत्याहार। कौन निर्वाचित होता प्रतिनिधि तार कार्य यदि संतोषजनक न हेले ताकू जे कौन समय प्रतिनिधित्व पदवी विताड़ित करिवार अधिकारटा जनसाधारण पाखरी न्यस्त थाए ताकू प्रत्याहार कहुए ताकू कौन कहुए प्रत्याहार कहुए ओके। आई होप एतकी पाने आज क्लासटा बुझी रिविजन करदे कौन कौन आम पढ़ी ओके। आम गणतंत्र तो मान गणतंत्र कौन कौन पढ़ेली जमती कि तार अर्थ गणतंत्र अर्थ पढ़ेली। गणतंत्र अर्थ माने कौन गणतंत्र अर्थटी दुईटी ग्रीक शब्दर मिश्रण सृष्टि होती गोटे डेमोस आ गोटे क्राटस। डेमोस अर्थ गण आ क्राटस अर्थ क्षमता तेणु आक्षरिक अर्थ जदि कहबा डेमोक्राटस अर्थ होचे गण क्षमता सेटा कहली। तापर डेफिनेशन कहली तो मानकू कि सिली गोटे डेफिनेशन देते लॉर्ड ब्राइस देते अब्राहम लिंकन देते सिली काण कहते जो सरकार प्रत्येक व्यक्तिर अंश थाए ताकू गणतंत्र बोली कहुए एटा सिली कहले। लॉर्ड ब्राइस कहले कौन अब्राहम लिंकन कहते कि गणतंत्र होची एभली एक शासन जो कि गणक द्वारा गणक पाई उद्दिष्ट शासन सेटा होची अब्राहम लिंकन कहले ओके। तापर गणतंत्र टाइप मान पढ़ेली ओके। गणतंत्र तो मान प्रकार भेद पढ़ेली जमती कि प्रत्यक्ष गणतंत्र है आ गोटे परोक्ष गणतंत्र है दुई प्रकार गणतंत्र पढ़ेली। फिर प्रत्यक्ष गणतंत्र को आम तीन भाग विभक्त करते जमती गण भोट है गण उद्योग है गोटे है प्रत्याहार है ओके। आज क्लास आई होप ठीक हो नेक्स्ट क्लास माध्यम आम डिस्कस करवा गणतंत्र काण काण सुगुण अच्छे सुगुण आउ दुर्गुण काण तार मेरिट आउ डिमेरिट को गणतंत्र मेरिट आउ डिमेरिट को नेक्स्ट क्लास माध्यम डिस्कस करवा ओके।